So now for 100% saturation line, rho D at 100% is equal to G gamma W divided by 1 plus omega G by ES. गामा W की जगह रो W लिख सकते हैं. तो 2.65 into 1 plus actually E है, ये E की जगह E का फॉर्मूला लिख दिया मैं. तो ओमेगा is 8%, 0.08, G is 2.65, S is 1 here. So difference between this and this is हम 80% के लिए S की जगह 0.8 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं. ये कैलकुलेशन बाकी का सबसे. ऐसा ही हर रीडिंग का कैलकुलेशन 100% सैचुरेशन के लिए करो, एक स्ट्रेट लाइन मिलता. 80% सैचुरेशन के लिए करो, एक और स्ट्रेट लाइन मिलता. तो डिफरेंस यही है. सो इस फॉर्मूले में wherever it is yes, for 100% saturated it is 1 and for 80% saturated it is 0.8. It is 0.8. मालूम हो बेटा कैसा करना. तो ऐसा ही सभी कंप्लीट कर लो. उसके बाद एक आप फिगर बना लो और आई थिंक दिस इज द कर्व and from that one you will get each and everything. So this here OMC and MDD is given. So 100% saturation line is given, 80% saturation line is given, everything is given, and this PPT I will share with you. So till now 14 PPTs, somebody has told me 14 PPTs I have shared. So 15, 16, 17, 18, 19, 20, today I will share it. So today I will share. Okay, so OMC is lying between 80 to 100% saturation. Okay, OMC is lying in between 100% and this is the 80-100% line. This is 80% line. Your OMC is between these two lines. Yes, just one observation is there. Nothing special about it. Everything is solved here. So apart from this, these are the two questions. When I give the PPTs questions, no need of writing now. So totally 3 questions I solved in the class plus 2 questions from this one. This is 1 and this is 1. So total 5 questions you have to calculate it. Of course, most of the things you have calculated now. So you draw the graph of all the 5 and submit it. One link I will send you. This is the assignment. This is the assignment for you people. I will send the link. So after that, you have to submit in that link, you have to submit all these 5 problems with calculations. 5 problems with calculations. So now, apart from this, what are the things we studied? These are this problem we did. So this is the simple question. Work out the theoretical maximum dry density. This we know very well. 100% saturation के लिए जो density निकालते, it is theoretical maximum dry density. So work out the theoretical maximum dry density for a soil sample having specific gravity of 2.7 and OMC 16%. OMC means moisture content. Specific gravity दिया, moisture content दिया. Also explain the difference in OMC value in case of Proctor test and modified Proctor test. सब वो बाद में करेंगे. So rho D maximum is given by this formula. Yes is 1 here. All the values are given to you. So this value you will get. It's very simple question asked in the IES. This theory I will explain afterwards. Also explain the difference in OMC value in case of Proctor test and modified Proctor test for cohesive soil and granular soil. Okay, whether things are clear to you. So now 4th one. A cohesive soil yields a maximum dry density diya at OMC diya during a standard Proctor test. If the value of G is there, what is the degree of saturation? Degree of saturation के लिए E चाहिए. E is given by rho W by G into rho W by rho D minus 1. And this is equal to 2.65 into 1 upon all these values is given. Everything is solved here.
nothing is new here. So this completes the, many questions are here, you can go through them. So this completes the chapter compaction. So only little bit theory is there here. I think field control of compaction or types of rollers, what type of roller is useful for other, वो क्या उतना मतलब important नहीं है. Some other time I will teach you, not in that much important also. So this completes the second unit. Actually this is the fifth unit from the syllabus point of view. So first unit I have completed except classification of soils, that I will teach you, and after that this is the thing. Okay, so now I want to go for the next question chapter, that is the permeability. One more, I will tell you once again, those who are preparing for university exam only, compaction is the best bet. Compaction is the best bet. In the compaction, syllabus is very limited. Only definition of compaction, how it is different from consolidation, advantages of compaction. There are 2 laboratory tests. One is standard Proctor, modified Proctor, difference between those 2, and then what is the compaction curve, what is OMC, what is MDD, and one type of problem. One detailed problem, if you do know, same problem every year is asked. Believe me, every year same problem is asked. Every year same problem is asked. So if you have any doubts till now, 2 chapters you can ask. If you have any suggestions, anything, if you are not following anything, first chapter notes in detail I have given you, बहुत अच्छी तरह से है, उसको अच्छी तरह कर लो. सेकंड चैप्टर कॉम्पैक्शन भी दिया हूं कुछ लोगों को, लेकिन वो बोल रहे हैं कि विजिबल नहीं है, तो मैं उसका कुछ रास्ता दुकान के आपको कॉम्पैक्शन के भी नोट्स देता हूं. पीपीटीज भी पूरे शेयर कर रहा हूं. सर नाही सर, ओपन होतंय आता कॉम्पॅक्शनच्या नोट्स. ओपन होणार नाही काय? होते तर ओके. सम शी सेइंग इट इज ओके. होता है तो ताई शेअर कर सगळ्या बरं. तुझे जे फ्रेंड्स आहेत सगळ्यांना पाठव बेटा. सो ईच किती झालं तुला शेअर करून घे. तो आप एक दूसरे को शेयर कर लो, तो शेयर करे तो अच्छा रहता. हाँ, तो देन और कुछ डाउट है आपको, अगर से टेलीग्राम का अकाउंट है तो मेरे पास टेलीग्राम पे एक नोट्स है, मतलब उसके सारे बुक्स है जीटी के 8-10 स्टैंडर्ड बुक्स है. आई विल शेयर विथ इट. उतना तुम कहाँ पढ़ते, वो तुमको क्या, वो पढ़ते नहीं कुछ नहीं, तुम इतना पढ़ो बहुत है. मेरे पीपीटीज, मेरे नोट्स, हो सके तो पुनमिया का बुक, अरोरा के भी अच्छे प्रॉब्लम्स है. आप गेट के क्वेश्चंस तो मैं आपको बाद में करा रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल गिव यू 400-500 एमसीक्यूज. वो भी डाटा है मेरे पास, बहुत अच्छे एमसीक्यूज है जो सोलापुर इंस्टीट्यूट को बहुत यूजफुल हो जाएंगे. हाँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से क्या सब उसमें से जाते. तो पास होना कोई, इट इज नॉट, आई मीन बहुत बड़ा काम है. आप अगर से पास होके तीर मार रहे तो सी, आपका फ्यूचर आपको सोचना है. हमको क्या है, 2 बातें बोलते हैं, उसके बाद अटेंडेंस लेते, बहुत हुआ तो आपके पेरेंट्स को एक शिकायत करते, 2 गुस्सा करते, फिर उससे क्या होने वाला है. दिस इज नॉट द एज फॉर ऑल दीज थिंग्स. नाउ यू शुड थिंक दैट कि मुझे क्या करना है. और याद रखो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द आवर डिग्री एंड योर डिग्री. हमारी डिग्री पे डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिलती थी उस जमाने में, अब वैसा नहीं है. अब नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत स्ट्रगल करना है. जस्ट इट इज एक हॉल टिकट है आपको आगे के लिए. वॉट एवर द डिग्री विल गेट बीटेक, इट इज हॉल टिकट फॉर योर फर्दर फ्यूचर. सो प्लीज कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, फंडामेंटल्स पढ़ लो. मैं अपनी तरफ से जितना हो सकते उतना पढ़ाता हूँ. और इफ पॉसिबल आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू कंप्लीट योर 2 डोजेस करके, पवार सर से परमिशन लेके. इफ यू स्टे इन द हॉस्टल, बिकॉज सपोज इफ यू आर स्टेइंग इन सोलापुर इन प्रॉपर प्लेस और बार्शी, इट्स ओके. बट इफ यू लिव इन स्मॉल विलेजेस, नो, किती प्रॉब्लेम्स राहते तुम्हाला. दिवसभर तुमचं करंट राहणार नाही, नेटवर्क राहणार नाही, अभ्यास होणार नाही, घरात काम राहते, काय तर घरात काम लावते, शेताला जातात, मित्र येते, सोयरे येते, टाइमपास असंच होऊन झालं. एक रेग्युलेशन जो तुम्हाला अभ्यासाला भेटणार ते नाही भेटणार. तर ते कुठे भेटणार, हॉस्टेलमध्ये भेटणार. सो इफ पॉसिबल ट्राई टू बी इन हॉस्टल. एंड अगर से यहाँ हॉस्टल आए तो हमसे भी आप मिल सकते. यू कैन हैव द नोट्स, बुक्स, कुछ भी ले सकते मेरे से. मैं आपको बोला ना, एक और मेरे पास एक इतना बेहतरीन बुक है जीटी के लिए, आई विल शेयर विथ यू पीपल. मैं अभी किसका तो शेयर किया, बी के बच्चे के साथ, आप वो भी ले सकते. ये जिराक्स कर लो, या 5-6 लोगों में जिराक्स कर लो, 50 रुपए लगते हैं उसको.
बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करे है सभी चीजें, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व है, वो बहुत अच्छा बुक है, दैट आल्सो यू कैन हैव। तो लाइब्रेरी जा सकते हैं आप, यहाँ पर आके पढ़ सकते हो, कॉलेज में आके, तो ये सब पॉसिबल है। तो देखो, इट्स ऑल अप टू यू, फिर ये आपके ऊपर है। अगर से आप कन्वीनियंट है घर में तो घर में ही कहीं भी पढ़ो, बट पढ़ो। दिस इज माई आई मीन रिक्वेस्ट टू यू पीपल, प्लीज। So don't waste your time. Still time is there. Still time is there. You have to catch up now. और इस बार गेट एग्जाम लिखो, एक्सपीरियंस को तो लिखो, क्वेश्चन पेपर्स कैसा रहता है, एग्जाम कैसा रहता, वहां का कैलकुलेटर कैसा यूज कर सकते, ये सब सीख लो। और अगर से इस बार आप क्वालिफाई हुए तो फिर पूछो मत। तो ये सब चीजें हैं, मैं आपको बार बार बोलते नहीं पड़ता, आपको एक करियर डिसाइड करना है। और याद रखो, करियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए सिविल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। एसएससी जेई के एग्जाम हर साल होते, आप एक गेट परफेक्ट पढ़ लिए, यूनिवर्सिटी प्लस गेट, अब इतना याद रखो। आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होने तक आपको यूनिवर्सिटी पढ़ना है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस, और गेट पढ़ना है, प्लस आपको साइमल्टेनियसली अपना इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना है, सॉफ्टवेयर के नॉलेजेस सीखना है, वो अलग बात है। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। आपका जो एम है, आप डिग्री के बाद उसको फॉलो कर सकते। गेट करे तो आपका दूसरे एक्सेप्ट सिविल सर्विसेज बाकी के सभी एग्जाम को आपको यूजफुल हो, एमपीएससी को तो बहुत अच्छा यूजफुल हो जाता। Okay, beta, let me stop it here, and now I will stop share करता हूँ, फिर स्क्रीन करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ जाके कहाँ जाना अब, और नया शेयर करना है तो मुझे भी कंप्यूटर नहीं आता, मुश्किल है। तो दिख रहा ही नहीं। Okay, I will start now the new topic. Stop share. Share screen. Just a minute. To share the further PPTs, क्या करना, मेरे मेल में कैसा जाना यहाँ से, just a minute, ask somebody. शेयर करा आहे ना, आता मी इथं स्क्रीन शेअर करतो।
Okay. Okay, I'm sorry. So all these problems are there given to you. You solve those problems. ये सब होमवर्क है, देखिए ये सभी प्रॉब्लम्स होमवर्क है, पीपीटीज के आंसर्स भी है, शायद देखो और ये सब सॉल्व करो. सो नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज flow of water through soil, and it is permeability. Next important thing is permeability. Let me start from here. So first of all, you should know what is permeability. Permeability is again a very important property of soil. Important इसीलिए है, देखिए in construction purposes, of course, in agriculture purposes पानी कितना है that doesn't matter. लेकिन कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हमको सॉइल में जितना हार्ड रहा उतना अच्छा, और जितना वाटर कंटेंट कम रहा उतना अच्छा, ये बहुत जरूरी है. सो द अब वाटर कंटेंट तो रहेगा ही. अब देखो, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट योर होम वेयर देयर इज नो वाटर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. चलो आप बांध भी लिए, ऐसी जगह जाके घर बांधे जहां पर पानी नहीं है, वाटर टेबल कम है, तो वहां पिएंगे क्या आप? पीने के लिए तो पानी चाहिए ना. आर यू फॉलोइंग मी? तो वहां पर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे या और कुएं के पास, मतलब wherever the water table is more, whenever you purchase the plot, you will ask वहां पानी की कैसी सहूलियत है, बोर मारे तो पानी लगता नहीं, कुआं निकाले तो पानी लगता नहीं. It means that we need water for our daily use. But at the same time, remember, when you construct that particular building, the water should be as low as possible. तो ये दोनों साइमल्टेनियस सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमको ऑलवेज ऐसी जगह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जहां वाटर टेबल आ ही जाएगा. तो अब सवाल ये उठता, आपका सॉइल कितना परमिएबल है? परमिएबिलिटी मतलब वो प्रॉपर्टी है जो पानी को बहने देती है उसमें से, सॉइल में से. और ये कैसा पास होता कि सॉइल में क्या है, इंटरस्टिसेस रहते, राउंड 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 पोर्स रहते. अगर से ये जो पोर्स है एक दूसरे को कनेक्टेड है, तब तो परमेबिलिटी बहुत इजी है, पानी ड्रेन होता, एबिलिटी ऑफ सॉइल टू फ्लो द वाटर इज मोर. बट इफ दीज पोर्स आर नॉट कनेक्टेड, देन इट इज नॉट, आई मीन नॉट परमिएबल. तो परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी सॉइल का वो प्रॉपर्टी है जो वाटर को उसके थ्रू फ्लो करने देता है. Following this one? So permeability is a very important topic. So how much the soil is permeable or it is impermeable, you have to decide first. You have to decide first. मालूम हुआ permeability क्या है? Permeability अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, just basic idea आना आपको. पानी बहने की जो कैपेसिटी है, so that is called permeability. अगर से पानी बहुत तेजी से बहता, so it is called more permeable. Otherwise, opposite of this one is impermeable. So here it is written, a material is porous if it contains interstices. Of course, the material is said to be porous if it contains interstices, means voids, round voids.
The porous material is permeable if the interstices are interconnected or continuous. मतलब यहाँ पर एक इंटरस्टिस है, यहाँ पर एक है, ये दोनों के बीच में कनेक्शन तो रहना या दोनों एक दूसरे को लग के रहना। ऐसा नहीं यहाँ पर एक इंटरस्टिस है और यहाँ पर एक इंटरस्टिस है और ये दोनों के बीच में सॉइल है, कनेक्शन नहीं है, तो पानी बहता ही नहीं। समझ में आ रहा आपको? बस एसटी का स्ट्राइक है, आप अपने गांव में हैं, कॉलेज यहाँ पर है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन योर प्लेस एंड कॉलेज, आप आ ही नहीं सकते। बस रहता तो बस में बैठ के आ सकते कनेक्शन। उसी तरह पानी के लिए एक पोर से दूसरे में बहना, कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है फॉर अ सॉइल टू बी परमेएबल। A liquid can flow through a permeable material, of course. Electron photomicrographs of even very fine clays indicate that interstices are interconnected. However, the size, cross section, and orientation of the interstices is different. Soils are highly variable. In general, all soils are permeable. So, what it means by this is, however minute soil may be, even clay, these soils are interconnected. These interstices are interconnected. Of course, this is less. In case of clay, the permeability is very less. But we cannot say that it is 100% impermeable. क्ले में भी थोड़ा ना थोड़ा, कितना भी माइनर पार्टिकल्स रहने दो, थोड़ा ना थोड़ा पानी फ्लो होता है। ऐसा कोई भी सॉइल नहीं है जो टोटली इम्परमेबल है, पानी उसमें से बहता ही नहीं। ऑफ कोर्स ग्रेन्स में, सॉइल ग्रेन्स में, सैंड ग्रेन्स में बहुत तेजी से बहता, क्ले में कम बहता, लेकिन बहता तो है ही। इट मींस दैट व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस एंटायर पैराग्राफ इज एवरी सॉइल इज परमेएबल। आई होप now what is meant by permeability is clear to you. What is permeability? The ability of soil to flow from one place to another floor is called permeability. So permeability is defined as the property of a porous material which permits the passage or seepage of water through its interconnecting voids. So permeability is defined as the property of that porous material which permits the passage or seepage of water through its interconnecting voids. So at least देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप क्या करने वाले अगले अपनी जगह है, हर सब्जेक्ट का बेसिक तो आपके दिमाग में रहना, ये परमेबिलिटी क्या है आपको पता रहना, कॉम्पैक्शन क्या है आपको ब्रॉड आइडिया रहना, कंसोलिडेशन क्या है, डेंस बोल तो क्या, तो जो भी प्रॉपर्टीज है सॉइल के, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल तो, दिस शुड बी ब्रॉड आइडिया यू शुड हैव। Permeable means how much water it allows to flow these things. A material having continuous voids is called permeable. Gravels are highly permeable while the stiff clay is the least permeable. आपको पूछेगा, give the example of permeable soil, then gravels is having maximum permeability. Gravels are highly permeable while stiff clay is the least permeable. Stiff clay जो है उसका permeability बहुत कम रहता, stiff clay is the least permeable, and hence such a clay may be termed impermeable for all practical purposes, and such a clay may be termed as impermeable for all practical purposes. Impermeable इसलिए बोलते हैं कि उसकी permeability बहुत कम रहती, इसलिए clay को हम क्या करते हैं जनरली, स्पेशली उसमें वो स्टिफ रहना, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लिक्विड टाइप है तो वो अलग, स्टिफ क्ले रहा तो इट इज टोटली इम्परमेबल, whereas gravel is maximum permeable. What is gravel, what is clay, what is sand, I will tell in classification of soils. Okay, so what is permeability is clear to you now. Permeability is a very important engineering properties of soils. A knowledge of permeability is essential in a number of soil engineering problems such as settlements of building. आपको बिल्डिंग का सेटलमेंट मालूम करने के लिए परमेबिलिटी मालूम होना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे सर परमेबिलिटी और सेटलमेंट का क्या रिलेशन है? आई विल टेल यू। सेटलमेंट क्या रहता, देखिए सॉइल कैसा, मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ये जो हम ग्राउंड से ऊपर बांधते हैं आपका बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, क्लियर। जो ग्राउंड के नीचे है वो है फाउंडेशन। हम लोगों को सुपरस्ट्रक्चर पूरा मालूम रहता है क्योंकि दिन भर देखते रहते हैं, खिड़की है, दरवाजा है, ये लिंटल है, ये बीम है, ये कॉलम है, ये छत है, ये सेल्फ है, अलमारी है, डोर है, विंडो है, हर चीज मालूम है, लेकिन फाउंडेशन में क्या है हमको नहीं मालूम, सिवाय इंजीनियरों के जो कंस्ट्रक्ट करते। तो फाउंडेशन में जो सॉइल है ना, whatever the soil is there in foundation,
that soil takes entire load of superstructure and उसका bearing capacity रहता, वो इनफ रहा तो सुपरस्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता। स्वेलिंग होने वाला, श्रिंक होने वाला, ऐसा सॉइल रहा तो बहुत मुश्किल है। तो ये जो सॉइल जो है, एक्चुअली सॉइल में वाइड्स रहते, नीचे फाउंडेशन के सॉइल में वाइड्स भी रहते, सॉइल भी रहता, वाइड्स पानी से भरा हुआ रहता। अब देखिए इस बिल्डिंग का सुपरस्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के सॉइल पे कंटिन्यूअस गिर रहा, समझ रहे? मैं आपके सर को दबा दबा के रखा हूं ऐसा, या आपके सर पे एक पत्थर है तो उस पत्थर का वजन आपके सर पे कंटिन्यूअस आते रहता नहीं। तो सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो, सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। बिल्डिंग का सारा वजन पानी के ऊपर गिरता, सॉरी पानी के ऊपर नहीं, सॉइल के ऊपर गिरता, और सॉइल में जो वाइड्स रहता उसमें का जो वाटर रहता, इस लोड की वजह से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। जो बिल्डिंग का लोड है उसकी वजह से whatever the white soil water is there in whites of soil, they'll slowly remove। और जब तकरीबन पानी निकल जाता तो सिर्फ सॉइल्स रह जाता। जब पानी निकल जाता देखिए वो सॉइल सूख जाता, उसका वॉल्यूम कम हो जाता। ऐसा यहाँ एक पोर सूख गया, यहाँ एक पोर सूख गया, तो उसके बाद जब लोड कंटिन्यू गिरता ये सारे नजदीक आ जाते, और सारे नजदीक आने से ऊपर गैप पैदा होता, और गैप पैदा होने से बिल्डिंग धंसने स्टार्ट होता। दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। अगर से आपका सॉइल पहले से ही इम्परमेबल है तो ये सेटलमेंट कम होता, लेकिन परमेबिलिटी ज्यादा है, पानी वहां पर कंटेंट बहुत है, तो ये प्रॉब्लम अराइज हो जाता। तो वाटर टेबल इसलिए कितना नीचे रहा फाउंडेशन के लिए उतना अच्छा है, लेकिन पीने के लिए, धोने के लिए, कपड़े के लिए, बर्तन के लिए तो पानी चाहिए ही। वहां हम बोलते कि ऊपर रहना, लेकिन फाउंडेशन में वाटर टेबल कितना नीचे रहा उतना अच्छा। तो सेटलमेंट कैसा होता मालूम है आपको? अब बताया ना आपको मैं, सेटलमेंट जब भी जैसे ही लोड सुपरस्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के सॉइल पे गिरता, उसमें से जो भी पानी है वाइड्स में से निकलते जाते, ड्राई सॉइल बचता, और नजदीक आ जाते, और फोर्स के ऊपर के फोर्स की वजह से टेंस हो जाते, ऊपर गैप पैदा होता, उसके वजह से बिल्डिंग धंसने स्टार्ट होता। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। तो सॉइल की परमेबिलिटी यहां पर आपको बता देगी कि कितना सेटलमेंट होने वाला है। गॉट इट? सेकेंड इज यील्ड ऑफ वेल्स। अगर से वेल जो आप खोदे उसमें कितना पानी आता है ये आपको तभी मालूम होता अगर से सराउंडिंग वेल्स, सराउंडिंग सॉइल जो है वेल्स का वो परमिएबल है। इफ इट इज परमिएबल देन यील्ड ऑफ वेल विल बी more water will be there in wells. Follow this one? Though permeability affects yield of wells. Permeability affects yield of wells. Permeability affects settlement of buildings. Permeability affects seepage through and below the earth structures. जो earth structure नीचे के structure उसमें बहुत important load करता है. It controls the hydraulic stability of soil mass. Of course, पानी जितना है तो hydraulic stability निकाल सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है परमेबिलिटी का रोल अर्थन डैम में। अर्थन डैम मालूम है आपको, ग्रेविटी डैम, अर्थन डैम पढ़ चुके वाटर रिसोर्सेज में। तो जो सॉइल अर्थ डैम में है वो लोकल मटेरियल का रहता, तो उसकी परमेबिलिटी कितनी है, वो पाइपिंग क्या है, या पढ़े आपको जगदार सर पढ़ा है आपको व्हाट इज पाइपिंग। और ये पाइपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं डाउनस्ट्रीम में डैम के, अर्थ डैम के। अर्थ डैम मालूम है ना आपको, ऐसा रहता ट्रेपेजोइडल टाइप का, इधर अपस्ट्रीम इधर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में फिल्टर लगाते। तो इस फिल्टर को डिजाइन करने के लिए भी उस सॉइल का परमेबिलिटी कितना होना ये बहुत जरूरी है। तो इतना सब एक ही तरीका है कि क्या, इतना सब का क्या बोलना है कि नंबर ऑफ परमेबिलिटी इज एसेंशियल इन नंबर ऑफ सॉइल यूजिंग प्रॉब्लम्स। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में परमेबिलिटी का मालूम होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। If you have any doubts regarding permeability in this topic, you can ask please. Whether you people are following me? Yes, sir. Okay, very good, beta. So this is the permeability, and these are the situations where permeability plays an important role. Okay, so now further moving, the flow of water through soil may either be laminar flow or a turbulent flow. देखिए लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, एक तो हमको पता चला कि सॉइल परमिएबल है, उसके बाद सॉइल में फ्लो कैसा है,
लैमिनार है टर्बुलेंट। आप बोलेंगे सर ये लैमिनार क्या है, टर्बुलेंट क्या है? बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स में। देखिए सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज होना जरूरी है, फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज होना भी जरूरी है, वाटर रिसोर्सेज का नॉलेज होना भी जरूरी है। तो लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो एक टाइप्स ऑफ फ्लो है। लैमिनार फ्लो में क्या रहता है, जो सॉइल बोल रहा हूँ, वाटर के पार्टिकल्स रहते डेफिनेट पाथ में मूव करते, वो दूसरे को क्रॉस नहीं करते दूसरे पार्टिकल के साथ, इसलिए फ्लो स्मूथ रहता और आराम से चलते रहता। समझ में आ रहा आपको? मतलब जहां पर ट्रैफिक के रूल्स है वहां देखो कार कैसे जाते, एक के पीछे एक पीछे आराम से जाते, कहीं एक्सीडेंट नहीं है, किसी को टकराना नहीं है। लेकिन जहां ट्रैफिक नहीं है, जहां रूल्स नहीं है, वहां इसको नो क्रॉस करता। सब्जी की मंडी में देखो, इसको उसको क्रॉस करता, इसको उसमें गाड़ी आती, उसमें ऑटो आता। तो यहाँ जो फ्लो है, यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे पार्टिकल, इसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है, उस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो आवाज बहुत करता। So the flow of water to soils may be either the laminar flow or turbulent flow, but in most of the cases, fortunately, it is a laminar flow only. In the laminar flow, each fluid particles travels along a definite path which never crosses the path of any other particle. Laminar flow में क्या होता, एक जो पार्टिकल है दूसरे को क्रॉस नहीं करता। तेरे रास्ते को तू जा, मेरे रास्ते को, एक दूसरे को पैरेलल रहते हो, वो टकराते नहीं, तो इसलिए स्मूथ फ्लो रहता। लेकिन इन टर्बुलेंट फ्लो द पाथ्स आर इरेगुलर एंड ट्विस्टिंग। In turbulent flow, the paths are irregular and twisting, crossing and recrossing at random. In most of the practical flow problems in soil mechanics, the flow is laminar. लेकिन luckily soil में जो रहता flow laminar रहता, और soil में जो पानी बहता ना, उसका velocity बहुत 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 कम रहता, और you can say it is negligible. जो पानी आप नदी में बहता, पाइप में बहता, हाँ, कैनाल में बहता, कैनल्स में, या रोड पे बहता, नाली में बहता, उसका वेलोसिटी बहुत रहता। लेकिन जो पानी किसमें बहता, सॉइल में बहता, वो बहुत कम वेलोसिटी का रहता। इसीलिए वेलोसिटी का जो एनर्जी है हम सॉइल में कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट करते हैं। टोटल 3 हेड्स है, याद है आपको? आगे पढ़ाता हूं मैं आपको। बर्नौलीज इक्वेशन में टोटल हेड इज इक्वल टू हेड बिकॉज ऑफ पोजीशन और डाटम, है ना, z, plus head because of velocity v square by 2g, and head because of pressure, that is p by w, and this is the Bernoulli's theorem. याद है आपको? So उसी तरह टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो पता है आपको। सॉइल में लैमिनार फ्लो है। द स्टडी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो कहां पर इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको, ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद बताऊंगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो, शायद मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ब्रेक के बाद आपको जल्दी से अटेंडेंस लूंगा, प्लीज सब लोग जल्दी से आ जाओ। ओके, ओके, इसके बाद एक ब्रेक ले लो और आफ्टर द ब्रेक आई विल कंटिन्यू दिस वन। और जल्दी से अटेंडेंस लूंगा मैं आपको, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जरा हाइड्रोलिक हेड बता के आपको खत्म करना।